Good morning. We are back with our online session and we are studying this session for class 10. Subject is geography and we were up with our chapter number 8, water resources. In that we had first studied different hydel projects, right? So our first hydel project which we had discussed in our last lecture was Bhakra Namal project of Himachal Pradesh on Satluj river, being one of the prominent projects of our modern India. Second one was Damodar Valley project. It was for the states of Bihar, Jharkhand and West Bengal, right, on Damodar Valley or Damodar river. Now up we are with our third project and I hope that you have written your notes. Notes लिखना आपने start कर दिया होगा, मैं यही उम्मीद करती हूँ. Okay, alright. So next up we have Hirakud project. Hirakud, it is very important project because Hirakud is the world's longest dam ever built on any of the river. So it is built on river Mahanadi, known as Sorrow of Odisha. Odisha का शोक बोलते हैं. Why? Because this river is one of the very prominent rivers flowing in the state of Odisha, and it is responsible for causing the floods in the state of Odisha. Next up, it originates in Bastar district in Chhattisgarh. छत्तीसगढ़ में बस्तर डिस्ट्रिक्ट में से ये रिवर ओरिजिनेट होती है. It is the longest dam and mind you, you have to be very keen about the length of the dams on which river it is built, which are the tributaries of that river and which other projects are included in that valley project. So it is the longest dam and it is about 4,801 meter, approximately about 14 kilometer upstream near Sambalpur. Storage कितना है? 810 crore cubic meters. 810 crore cubic meters. It was built in two phases. Hirakud dam को दो phases में बनाया गया, मतलब part 1 में कुछ part और part 2 में another. So which are those two phases? First phase is Sambalpur district with Borgarh canal on right. मतलब जैसे ये river है तो उसके right बैंक में कुछ और left बैंक में कुछ कैनल्स या कुछ डैम्स बनाए जाएंगे. ठीक है. सो संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर है? ये भी उड़ीसा में है और वहीं पे बोरगढ़ कैनल मतलब होता है नहर होती है, मतलब जैसे आपकी रिवर जो निकल रही है वहां से, तो उसके पानी को अलग अलग चैनल्स में डिवाइड किया जाता है और अलग अलग पार्ट्स को पहुंचाया जाता है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? नहर. वी कॉल इट पास नहर. सो ऑन राइट वी हैव बोरगढ़ कैनल इन Sambalpur district and next we have Sasan and Sambalpur canal on left. Left पे इसके दो कैनल्स हैं, सासन और संबलपुर, एंड राइट पे है इसके संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है ये सारा जो है. ठीक है. हीराकुद डैम. सो वहाँ पे बोरगढ़ कैनल है और दूसरा है सासन और संबलपुर कैनल. सेकेंड फेज में क्या बनाया गया? इसमें 4 पावर प्लांट्स. पावर प्लांट्स आप समझते हो ना, where the electricity hydel power is generated. Those are the 4 power plants which are built in the second phase. Next up we have 2 other dams. मतलब इस प्रोजेक्ट में हीराकुद डैम के अलावा और 2 डैम्स, लोकल डैम्स बिल्ड किए जा चुके हैं. And which are those? They are Tikrapara and Naraz. These are the names of 2 dams which are built under Hirakud Valley project. So this was, we were up with Hirakud dams and the projects associated with Hirakud dam. Next up, these are now national level projects, जो किसी दो स्टेट्स के कोलैबोरेशन और उसमें ज्यादातर फंडिंग कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है. तो ये थे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स. एंड सम ऑफ नाउ वी आर अप विथ स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स एंड पर्टिकुलरली रिलेटेड टू राजस्थान गवर्नमेंट. कि राजस्थान गवर्नमेंट कौन से स्टेट के साथ कोलैबोरेट करके उस रिवर वैली प्रोजेक्ट को डेवलप कर रही है और उसमें फंडिंग गवर्नमेंट कितना दे रही है एंड ऑल दैट. सो प्रोजेक्ट्स इन राजस्थान, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स इज चंबल वैली प्रोजेक्ट. चंबल रिवर, यू ऑल माइट बी अवेयर दैट चंबल रिवर फ्लोज थ्रू वेयर? कोटा. कोटा किसके बैंक पे? चंबल वैली. चंबल रिवर
के लिए, एंड दस इट इज अ जॉइंट वेंचर. JV मीन्स जॉइंट वेंचर बिटवीन राजस्थान एंड MP मीन्स मध्य प्रदेश गवर्नमेंट. So it was established long back in 1953 on Chambal River. As you know, Chambal वही रिवर है और उसी रिवर के ऊपर चंबल रिवर के ऊपर ही चंबल वैली प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है. It was associated in 1953. What was the purpose of this project? So the purpose of this project was to avoid soil erosion. What? To avoid soil erosion. Common points लिख सकते हो आप पर्पस में. जैसे किसी भी डैम को बनाने का पर्पस क्या होता है? फ्लड्स अवॉइड करना, ड्रॉट और फेमाइन जैसे सिचुएशन को अवॉइड करना, सॉइल इरोजन अवॉइड करना और टू स्टेबलाइज द इकोलॉजिकल कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, राइट? सो द पर्पस वाज टू अवॉइड सॉइल इरोजन एंड फ्लडिंग. सो इट वाज बिल्ड इन 3 phases. अब चंबल वैली प्रोजेक्ट जो इसको 3 phases में बनाया गया था. These 3 phases are very 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 important. First phase we have गांधी सागर डैम इन मंदसौर डिस्ट्रिक्ट. मंदसौर ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये कहाँ है? इट बॉर्डर्स राजस्थान एंड इट फॉल्स इन मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में है एंड इट इज बॉर्डरिंग विद राजस्थान. Thus both the states are sharing the water of this project, right? So it is गांधी सागर डैम जो फर्स्ट फेज में बनाया गया जो कि मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि मध्य प्रदेश में. सेकेंड फेज में वी हैव बिल्ड राणा प्रताप सागर एट रावतभाटा चित्तौड़गढ़. अब मुझे बताइए कि रावतभाटा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे राजस्थान का न्यूक्लियर पावर प्लांट सिचुएटेड है, राइट? जहाँ पे आप न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करते हो, रावतभाटा में है. सो इन सब चीजों के लिए भी पानी की वाटर इज इसेंशियल. सो दिस डैम इज वेरी यूजफुल और वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली. सो राणा प्रताप सागर जो कि जैसे महाराणा प्रताप का नाम है तो आप रिलेट कर सकते हो कि वो चित्तौड़गढ़ से होगा. थर्ड आप ये जवाहर सागर प्रोजेक्ट. इट इज ऑन कोटा बूंदी बॉर्डर. कोटा और बूंदी, जैसे मैंने बोला कि चंबल वैली, चंबल रिवर जो है कोटा जो है प्लेस आपका वहां से होती है गुजर के, तो और कोटा का बॉर्डर लग रहा है बूंदी से. तो कोटा बूंदी के बॉर्डर पे हमने कौन सा बनाया? थर्ड फेज में जवाहर सागर डैम बनाया है. सो दिस 3 डैम्स, गांधी सागर डैम, महाराणा प्रताप सागर and Jawahar Sagar Dam, these 3 are very important dams that are built under Chambal Valley project. And next up one we have Kota barrage. So ये एक नहर है. बैरेज मतलब आप समझ सकते हो it is a type of dam only, ठीक है? So बैरेज जैसे आप पानी के बहाव को रोकने के लिए जो बैरेज लगाते हो जैसे, तो उसको हम बैरेज बोलते हैं. तो for irrigation purpose this Kota barrage is derived from Chambal Valley project only and it is very important from irrigation point of view. As you can understand, Rajasthan receives very less rainfall. So how important these projects are to provide maximum amount of water and for agricultural or fisheries and many purposes, right? To bring up the standard of living of people. Or also this river valley projects are very important. So ये पहला ये बहुत important project था. सेकंड अब we have इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट और राजस्थान कैनल. इंदिरा गांधी बहुत सुना होगा आपने इसके बारे में कि इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट यहाँ पे बहुत बार सुन रहे हैं. ये नहर बनाई गई है, इस नहर का पानी बहुत आ रहा है. It has become the lifeline for Rajasthan, right? So why? Because this is the biggest man-made canal in Asia. Not only in India. इंडिया का तो सबसे बड़ा कैनल है ही है, बट ये एशिया का सबसे बड़ा कैनल है. What? It is the biggest man-made canal. Artificial, natural नहीं है, हमने बनाया है इसको. इसलिए ये क्या man-made canal? Not only in India but in entire Asia it is the longest canal और biggest canal. And its length is 649 किलोमीटर. और सबसे ज्यादा ये किसको ड्रेन कर रहा है?
Indira Gandhi Canal System, which is known as the lifeline of Rajasthan, because it drains how many districts? 9 districts, and it is taken out from Harike barrage here HP. मैं आपको ये ना, मैंने जैसे आपको बताया था कि राजस्थान कैनल को 2 फेजेस या इंदिरा गांधी कैनल को 2 फेजेस में डेवलप किया गया था। एक था राजस्थान फीडर कैनल और दूसरा था मेन कैनल। अब मैं बता रही हूँ उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट बता रही हूँ, इसलिए मैंने ये आपके लिए ये ना एक टेबल बनाई है, ये जो है लाइन। सो दिस इज HP मींस हरीके बैरेज। सो यहाँ से एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सतलज एंड रावी वी आर टेकिंग आउट द इंदिरा गांधी कैनल, राइट। यहाँ से हम कैनल को डिराइव कर रहे हैं एंड आफ्टर दैट ये फर्स्ट फेज है मसीता वैली। ये एक जगह है जहाँ तक फर्स्ट फेज को डेवलप किया गया और इस फर्स्ट फेज को हम बोल रहे हैं राजस्थान फीडर कैनल। और दूसरा जो कैनल है उसको हम मेन कैनल बोल रहे हैं सेकंड फेज को, वो मसीता वैली, जहाँ हमने उसको प्रोजेक्ट को छोड़ा है मसीता वैली तक, वहां से लेके मोहनगढ़ यहाँ तक सेकंड फेज में इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया है। डू यू गेट दिस? नेक्स्ट अप वी हैव, so what is the very importance of this Indira Gandhi Canal? It is going to develop the dry regions like Thar desert region of Rajasthan. It is going to provide water for irrigation purpose, जो agricultural plants के लिए बहुत useful है। Secondly, it is going to provide what? Drinking water की supply होगी कैनल से। तीसरा, it is going to develop the economic development of that region। इकोनॉमी बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा जब वाटर एडिक्वेट क्वांटिटी में है तो एग्रीकल्चर अच्छे से कर पाएंगे, एग्रीकल्चर होगा तो वो क्रॉप्स को बेचेंगे और फार्मर्स को पैसे मिलेंगे। सो इट इज अ साइकिल विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये आपको दिमाग में रखना है कि जब आप किसी भी एरिया में डैम को बिल्ड करते हो तो वहाँ पे आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हो सबसे पहले। सेकेंडली, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, जो रेन वाटर एक्सेस रेन वाटर हो रहा है तो वो कंजर्व हो रहा है, एंड इफ देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर यू आर प्रोवाइडिंग द वाटर टू दैट प्लेस। नेक्स्ट अप वी हैव, सो इट ड्रेन्स हाउ मेनी 17.41 crore hectares land is irrigated in Rajasthan itself in desert region। अब जैसा आपको पता है राजस्थान is having its border with Pakistan, so it is very important for developing the border regions also, right? वेस्टर्न बॉर्डर को डेवलप करने में भी बहुत बड़ा हाथ है इंदिरा गांधी कैनल सिस्टम का। एंड इट इज एक्सटेंडेड अप टू दादरा रोड बाड़मेर। बाड़मेर एंड पॉइंट है, बाड़मेर शेयर्स बॉर्डर विद पाकिस्तान। सो दादरा रोड बाड़मेर तक इसका एक्सटेंशन है। तो कहाँ से शुरू हो रहा है? शुरू हो रहा है पंजाब से हरियाणा बीच में और राजस्थान में बाड़मेर तक जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि हाउ लॉन्ग दिस कैनल इज। नेक्स्ट अप we have Mahi Bajaj Sagar. It is also very important hydropower project for Rajasthan. So it is also a JV, means for joint venture between Rajasthan and Gujarat. Joint venture 50-50 means whatever उनका जितना stake होगा उनके partnership में वो develop कर रहे हैं, इसलिए उसको joint venture बोलते हैं। And between Rajasthan and Gujarat, क्यों? क्योंकि ओरिजिनेट कहाँ से होगी? विंध्याचल माउंटेन्स, विंध्य जो पर्वतमाला है वहाँ से शुरू होगी और डेवलप होते हुए राजस्थान और गुजरात दोनों ही स्टेट्स में ड्रेन कर रही है अपनी एरिया को पानी से। एस्टैब्लिश्ड इन 1971 ऑन माही रिवर। 1971 ईयर में माही रिवर पे ये प्रोजेक्ट बिल्ड करना स्टार्ट हुआ था। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा रीजन। मीन्स you have to be aware that there is a tribal settlement in Banswara and Dungarpur region, and in that region we have many tribal peoples who are backward, who काफी backward है और उनके development के लिए माही बजाज सागर बहुत important role play कर रही है। So if you are asked with the question, name the dam which is responsible for development of tribal region, so you can answer with माही बजाज सागर। Next, माही बजाज सागर को भी राजस्थान में ये जो पावर प्रोजेक्ट है ना, इसमें राजस्थान में एक अलग डैम है और इसमें गुजरात में एक अलग डैम है और इससे एक आधी कोई कैनल जो नहर बोलते हैं उसको वो भी डिराइव करती है। सो माही बजाज सागर एट बोरखेड़ा इन बांसवाड़ा का राजस्थान गवर्नमेंट जॉइंट वेंचर है ना, तो
इवन जहाँ राजस्थान में अलग डैम बन रहा है उसके ऊपर, गुजरात में अलग डैम बन रहा है वैसे, ठीक है। और कैनल्स भी अलग बन रहा है और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी बन ही रहे हैं। नेक्स्ट अब वी हैव बिसलपुर प्रोजेक्ट। इट वाज सेट अप इन 1997 और 98, मींस अभी एक 22 years back it was set. So it is a concrete dam. Concrete means what? It is built up of sand, cement and many other materials which are used. Okay. So it is concrete dam on river Banas. Banas is very important river in Rajasthan. So it is built on river Banas near town Toda Raising in Tonk district. कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? टोंक डिस्ट्रिक्ट में है हमारा बिसलपुर डैम, बनास रिवर पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सो इट इज हेल्पफुल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट अवॉइड्स फ्लड सिचुएशन, इट इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर इरिगेशन पर्पस एंड इट प्रोवाइड्स ड्रिंकिंग वाटर। सो लेट अस सी द रीजंस। इरिगेशन कहाँ पे? सवाई माधोपुर, टोंक के पास में है सवाई माधोपुर। सो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट को इरिगेशन पर्पस के लिए बहुत हेल्पफुल है ये बिसलपुर डैम। नेक्स्ट, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर रहा है जयपुर सिटी को। पिंक सिटी, कैपिटल ऑफ राजस्थान, इज प्रोवाइडेड ड्रिंकिंग वाटर थ्रू दिस डैम एंड अजमेर, केकड़ी, सावर या ब्यावर रीजन्स आर प्रोवाइडेड विद ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन सप्लाई टू सवाई माधोपुर रीजन थ्रू दिस बिसलपुर डैम। सो टुडे वी हैव स्टडीड हीराकुद प्रोजेक्ट, नेक्स्ट चंबल वैली प्रोजेक्ट, इंदिरा गांधी कैनल रिवर सिस्टम, नेक्स्ट माही बजाज सागर एंड बिसलपुर डैम। तो 5 प्रोजेक्ट्स हमने डिस्कस किया और इसके पहले वाले लेक्चर में 2 प्रोजेक्ट्स। सो 7 प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं अभी तक एंड दोस आई एम स्टेपिंग असाइड, यू टेक अ स्क्रीनशॉट। और इसके पहले भी जो